history.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। भारत और चीन की सीमा, खासकर लद्दाख में चीन के साथ हमारी सेनाओं का जो नोकझोंक है वो अभी भी जारी है। उम्मीद की जा रही थी कि चीनी सेना अप्रैल के पहले सप्ताह की स्थिति तक लौट जाएगी, लेकिन अभी तक नहीं लौटी है। दो बातें उसको लेकर कही जा रही हैं। एक तो कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि चीनी सेना इस बार लौटने के इरादे से नहीं आई है और इसलिए वो कई तरह के निर्माण कर रहे हैं। वो जाड़ों में भी यहीं रहेंगे और भारत को पीछे धकेले रखने की कोशिश करेंगे। कुछ लोगों की राय यह है कि सितंबर में जब ठंड बढ़ने लगेगा तब वो वापस चले जाएंगे। क्या स्थिति है, वास्तविकता क्या है, चीन के इरादे क्या हैं और चीन चाहता क्या है, और उसके साथ साथ 1962 के युद्ध और उसके बाद और उसके पहले भारत और चीन की सीमा पर क्या क्या चलता रहा। करीब 4700 किलोमीटर लंबी हमारी सीमा है, लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक, और ये हर इलाके में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ विवाद चीन के साथ बना हुआ है। क्यों बना हुआ है, इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमने आमंत्रित किया है रिटायर्ड कर्नल सुमित सेन को। सुमित सेन सीमा पर तैनात रहे हैं लंबे समय पहले, रिटायरमेंट से पहले, और उनको चीन के इरादों की अच्छी तरह से जानकारी है। सुमित सेन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम में। नमस्कार। मैं किसी और तरह की कोई बात नहीं करके मैं बिल्कुल सीधा सवाल पूछूंगा कि चीन का इरादा क्या है। क्या वो सितंबर में वापस लौट जाएगा या इस बार वो इस इरादे से आया है कि वो जो भारतीय नियंत्रण वाले क्षेत्र हैं उसका कुछ हिस्सा जिस पर उसने कब्जा बना रखा है वहां पर स्थायी रूप से बना रहेगा। China has not come here to have 15 cups of tea when they are meeting with the corps commander here, corps commander or the divisional commander. And already 15 rounds have passed. They have not come here to have a, nice spring evening and go back. They have come here with certain missions, and till those missions are completed, they will not go back. The first problem they faced on 15th of June, when they thought that they will have a cakewalk over the area of Sango Lake and Pansong Lake and Galwan areas. But what turned out was a ghastly incident for us and for them both. Now, we are aware of what happened on 15th of June, so I will not delve on it too much. उस दिन हमारे 20 जवान मारे गए थे, हमारे सेना के 20 लोग मारे गए थे, और कुछ बहुत चीन ने संख्या तो नहीं बताई पर इसको स्वीकार किया कि उनके लोग भी मारे गए हैं। ये मैंने सिर्फ दर्शकों की जानकारी के लिए बता दिया। जी आप बोलें। करेक्ट। तो लेकिन ये जो मारे गया है ये कोई नॉर्मल तरीके से मारा नहीं गया है। हमारा फौज या कोई भी दुनिया का कोई भी फौज इस तरीके से मारा नहीं जाता है। जो हुआ था वो दुर्भाग्यजनक तो नहीं बोलूंगा, जघन्य, terrible incident, and which a civilized army or any civilized country wouldn't have seen in the modern times. Two nuclear power nations were facing each other or have been facing each other for quite some time in this modern age, in the 21st century, and the Chinese decide to ambush our officers and jawans who had come unarmed and kill them with iron rods wrapped in barbed wire or with stones. Because there is an agreement of 1993 which stipulates that on the LAC, firearms will not be used, even hunting will not be done within 2 kilometers of the LAC, even no type of any explosives also will be used, and no such assault or affray will be carried out. So China, as we know, or as we know them historically, they are not bothered about international laws, agreements, rules. So what they did was use this sort of primitive handmade weapons or improvised devices and lulled our 4 or 5 people who came there along with Colonel Babu, the commanding officer of 16 Bihar, and they killed them in cold blood.
thereafter, they didn't expect what had happened, and then they kept quiet. Because after this death of the father figure of the battalion came into the this thing of the soldiers who were behind, they came forward, they rushed forward, and they used the same tactics that the Chinese had used. Chinese were much greater in number, but when these people came, they were in a blood hunting mood. So they also were carrying iron rods. They also used all the stones lying around there, and they had used bayonets. So the bayonet, which is used at the front of a rifle for close combat, but which cannot be termed as a firearm, so it is well within the agreement which is stipulated that firearms will not be used. So Indian soldiers, they never used it. But they played merry hell with the Chinese, and I think the Chinese would have realized what they took on, they shouldn't have done. निश्चित तौर पे जो भारतीय सेना थी उसने बहुत बहादुरी के साथ उनका मुकाबला किया और उनको जवाब दिया। हालांकि जब उन्होंने भारतीय सेना पे हमला किया था तो बड़ा चुपके छिपके कर दिया था और तैयार नहीं थे, लेकिन जब भारतीय सेना ने समझ लिया उनके इरादे को तो बहुत सख्ती के साथ में उसको निपटाया। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर यह आता है कि चीन का इरादा क्या है। अगर हम पैंगोंग झील की या लेक की बात करें तो हम पहले जो है उसके फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करते थे, अब उन्होंने हमको फिंगर 3 तक सीमित कर दिया है। फिंगर 4 के आसपास वो बैठे हुए हैं, मतलब हम फिंगर 4 पे भी नहीं जा पा रहे हैं। सो क्या इरादा है, क्या वो अब जो है LAC को अपने हिसाब से डिफाइन करके और भारतीय हिस्सा को कंट्रोल करना चाहते हैं? हो सकता है ये इरादा है, लेकिन चाइना का जो प्रॉब्लम अभी है, अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ है इंडियन साइड में, वो है कि हमने कुछ रोड कंस्ट्रक्शन किया है। एक रोड उसमें से ले दुर्बुक होके किया है दौलत बेग ओल्डी जो एयरफील्ड की तरफ, और वहाँ से काफ़ी सारे ब्रिजेस है। उसमें से कोई ब्रिज तैयार हो गया, कुछ तैयार हो रहा है, और इसका ऊपर चाइना का काफ़ी ऑब्जेक्शन है। दौलत बेग ओल्डी एक पुराना एयरफील्ड है। ये एयरफील्ड 1962 का पहले भी था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में ब्रिटिश ने ये बनाया था, लेकिन उसके बाद यूज नहीं हुआ है। 62 का टाइम है, 1962 में जब फर्स्ट चाइनीज एग्रेशन हुआ था हमारा साथ, तब इंडियन एयरफोर्स ने इसको एक्टिवेट किए थे और यूज भी किए थे। उसके बाद ये डॉर्मेंट है, लेकिन अभी रिसेंटली 2013 में इंडियन एयरफोर्स फिर वहाँ पे AN-32 लैंड कराया। उसके बाद 2017 में उसने ग्लोब मास्टर सबसे हेवी जो एयरक्राफ्ट है US का, वो लैंड कराया, और एट दैट हाइट जो 17,000 फीट है, और पहले कभी भी इस टाइप का एयरक्राफ्ट लैंड किया नहीं है। तो इस एयरक्राफ्ट का खूबिया ये है कि इसका लोड कैरिंग कैपेसिटी इज ह्यूज। इसमें टैंक से लेके आर्टिलरी गन से लेके बहुत सारे हेवी इक्विपमेंट कैरी कर सकता है। और जब ये लैंड कर लिया, ट्रायल लैंडिंग हो गया, अभी वो एयरफील्ड हम पूरी तरह से उसका अच्छी तरह से इंप्रूवमेंट और डेवलप कर रहा है। नाउ ये रोड और ये एयरफील्ड एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक एरिया है, तो चाइना को ये बिल्कुल ही पसंद नहीं आया, क्योंकि मुझे जो लग रहा है कि चाइना के हमेशा एक पैरानॉइड एटीट्यूड से भुगता रहता है कि वो हमेशा सोचता है कि। मैं बीच में इंटरप्ट करूंगा, आपके पास मैप अगर हो तो आप मैप पर इस एरिया को बता सकेंगे? हाँ, मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखिए, ये आपका पैंगजोंग शो, दैट इज पैंगजोंग लेक, और ये यहाँ पे जो है ये है डरबुक, और ये है जो यहाँ पे ब्लू से जो दिखा दे रहा है ये है नदी या नाला। तो इसमें से गलवान नाला है, और यहाँ पे डरबुक है, ले इस तरफ है, कारगिल इधर है। तो ये रोड जो है यहाँ पे जा रहा है नॉर्थ की तरफ, दौलत बेग ओल्डी की तरफ। इस साइड में है, यहाँ पे और भी कुछ एरिया आपको दिखाई दे रहा है। इस साइड में आगे आपका सियाचिन, ये एरिया कंप्लीट है सियाचिन। तो जो हमारा प्रॉब्लम हुआ है, ये रोड से ये कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ है, ये नदी का ऊपर से ब्रिज बन गया, और भी आगे ब्रिज तैयारी हो रहा है, और ये तकरीबन 200 किलोमीटर जो रोड है, जो पहले नॉर्मल एक कच्चा रोड था, अभी वो रोड ब्लैक टॉप हो गया बहुत आगे तक, और बाकी भी
अच्छी तरह से टू लेन अच्छी तरह रोड हो गया, और साथ में यहाँ पे जो ब्रिजेस है क्लास 70 ब्रिजेस तैयारी हो रहा है, जिसको वजह से हेवी व्हीकल्स क्रॉस कर सकता है। तो ये एक मेन प्रॉब्लम है चाइना का, जो वो सोच रहा है कि उसको कैसे सॉर्ट आउट करे। बहुत अच्छी तरह से आपने इसको बता दिया। अब मैं फिर उसी सवाल पे आता हूं कि सितंबर में, वो सितंबर तक यानी सर्दियों में जब वो इलाका रहने के लायक नहीं होता है, यानी -40 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है, तब वो वहां रहेंगे या वहां से चले जाएंगे? देखिए, मैं जैसे पहले बोला है, दिस इज अ लॉन्ग हॉल। चाइना यहाँ पे आया है, चाइना अपना मिशन हासिल करेंगे। तो यहाँ पे आके गलवान में जो इंसिडेंट हुआ है, आगे जो भी थोड़ा बहुत धक्का धक्की हुआ है, 2-3 कुर्सी का यह हुआ है, वो उसका एम नहीं था। उसका एम क्या है, अभी हमको जो लग रहा है कि उन्होंने एलएसी को तो उन लोग मानता नहीं है। इंडियन साइड का एलएसी एक है, उनका तरफ से एलएसी और कुछ है, लेकिन उसमें वो खुश होने वाला नहीं है, क्योंकि अभी तक उनका जो भी अभी हमने देखा है इंटरनेशनल लेवल में, स्ट्रैटेजिक लेवल में, वो और कुछ चाहते हैं, वो मांगे पूरा होने के बाद वो और कुछ मांगता है। इसी तरीके से अनलिमिटेड रिक्वायरमेंट, अनलिमिटेड डिमांड्स है। तो सितंबर तक तो ठीक है, वेदर अभी जो है वहां पे अभी ऑलरेडी सब 0 तक पहुंच गया है। सितंबर के बाद अक्टूबर में वहां पे एक्चुअल स्नो स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आपको याद है 1962 का अक्टूबर में वहां पे हमारा जो फर्स्ट लड़ाई, एक्चुअल लड़ाई जो चाइना के साथ हुआ था, उस समय बर्फ से स्टार्ट हुआ था, लेकिन बाय नवंबर वो लड़ाई खत्म हो गया था। तो हो सकता है कि चाइना के एमओ है, चाइना आज नहीं आया है इधर इस एरिया में, चाइना यहाँ पे एंटर किया है। आप ध्यान से सुनिए, अप्रैल मई का महीना में, तब से उन लोग यहाँ पे आके उन लोग बिल्डअप कर रहे हैं। पहले बटालियन लेवल में आया है, बटालियन में उनका 700-800 सैनिक होगा, उसके बाद रेजिमेंट, दैट इज हमारा इक्विवेलेंट टू ब्रिगेड लेवल में आ गया। उसके बाद उसको तो वहां पे हेलीपैड कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया। उसके बाद वहां पे उनका आर्टिलरी गन्स ऑलरेडी आके डिप्लॉय हो गया है, उनका एयर डिफेंस का जो गन्स है ये सब आ गया। ये सब तैयारी होने का मतलब है, उसके बाद उनका जो हाइट है, जो आपने जो फिंगर का बात किया था, वो फिंगर आपका हाइट से नीचे आके पैंगजोन लेक तक आ रहा है, लेकिन वो फिंगर का ऊपर है, और हाइट जो उनको डिफेंस करने के लिए वो हाइट उनको चाहिए। तो ये उन्होंने काफी अच्छी तरह से धीरे धीरे मजबूत कर रहा है। और मजबूत मतलब वहां पे बंकर डिगिंग किया है, बंकर अंडरग्राउंड शेल्टर होगा, उसके साथ कम्युनिकेशन ट्रेंचेस होगा। तो ये सब करने के लिए टाइम चाहिए। तो अप्रैल में से आके सितंबर अक्टूबर तक अगर वो ये कर लिया, और कर सकते भी है, तो उनका मिशन जो है उसका बाद आगे का देखा जाएगा। तो हमारा जो बॉर्डर है वो तो करीब 4000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो आप बॉर्डर के मैप पर ये बता सकते हैं कि वो कौन कौन सा एरिया है जहां पर कि उनके साथ हमारा विवाद हो रहा है? ये है इंडिया का साथ चाइना बॉर्डर, जो आपका स्क्रीन को ऊपर दिखा दे रहा है। एकदम राइट से लेके, राइट मतलब ईस्ट से लेके चल रहा है। ये ईस्ट में पहले है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का आपको जो दिखा दे रहा है रेड सर्कल है, और ये से लेके ये अरुणाचल प्रदेश है, और उसका साउथ में आ गया असम, और बाकी, और उसका लेफ्ट में है भूटान, और उसका लेफ्ट में है सिक्किम, और पास में है नेपाल। फिर बाद में आ रहा है उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर। तो पूरा, अगर जम्मू एंड कश्मीर का हम जो मेन कर रहे हैं वो है लद्दाख। तो लद्दाख का भी अलग सब डिविजन हो गया जम्मू एंड कश्मीर का। तो लद्दाख से लेके ये पूरा बॉर्डर यहां तक अगर देखोगे तो ये है तकरीबन 4000 किलोमीटर, 4000 किलोमीटर से ज्यादा। अभी आप गौर से देखोगे तो इसमें कुछ एरिया देखो येलो से पीला रंग से दिखाई दिया रहा है, जैसे अरुणाचल प्रदेश का इस एरिया में, उसके बाद सिक्किम का इस एरिया में, उसके बाद उत्तराखंड से लेके हिमाचल के इस एरिया में, और
लास्ट में लद्दाख के इस एरिया में और आखिरी में अक्षय चिन। तो अब आप 4000 किलोमीटर का मैप को ऊपर आप देखोगे तो ऐसी कोई एरिया नहीं है जो डिस्प्यूटेड नहीं है, क्योंकि ये जो येलो एरिया है ये चाइना चाहते हैं और चाइना बोलते हैं ये पूरा उनका है। तो अभी आप बोलिए कि इस एरिया के हिसाब से हम उनको क्या क्या देंगे और क्या क्या रखेंगे। आप एक बार चिंता कर लीजिए, अक्षय चीन जो है, अक्षय चीन ऑलरेडी चाइना का कब्जा में है, आज नहीं 1960 से उनका कब्जा में है और वो काफी बड़ा एरिया है। उस समय जब चाइना ये ले लिया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू बोला था वो एरिया के में क्या उसका वैल्यू है, वो तो एक खास का टुकड़ा भी उसमें नहीं होता है, तो क्या फर्क पड़ता है। ये था पंडित जवाहरलाल नेहरू का कोट अनकोट। तो अभी समझ लीजिए तो चाइना एडवांटेज क्यों नहीं लेगा। हाँ, उस टाइम पे चाइना एक ये दिया था कि अरुणाचल प्रदेश आप रखो, चाइना अक्षय चीन मुझे दे दो। ये उनके एक था उनका एक प्रपोजल, लेकिन वो प्रपोजल उस समय कोई एक्सेप्ट नहीं किया था क्योंकि सोचा गया था कि दोनों ही हमारा है। एनीवे, तो ये सब बात पुराना हो गया, लेकिन अक्षय चीन यहाँ पे मैं सिर्फ एक बात जोड़ना चाहता हूँ कि दुर्भाग्य ये है कि आर्मी तो सीमा पे लड़ती रहती है, लेकिन हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं लगातार गलती करते रहते हैं। नेहरू की बात आपने बताई कि उन्होंने ये कह के खारिज कर दिया कि वहाँ घास भी नहीं उगता है, वो बंजर जमीन है। शायद उनके कहने का मतलब था कि उसका कोई उपयोग नहीं है, हमारे पास रहे या नहीं रहे। लेकिन आज कुछ दिनों पहले जब वो ये घटना शुरू हो गई थी, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा न कोई भारत की सीमा में आया है, न कोई है, न किसी चौकी पे कब्जा किया है। और मुझे कोई एक सेना के एक्सपर्ट बता रहे थे कि जब शुरू में वो बातचीत के लिए गए, जब चीन और भारत के बीच में कमांडर लेवल में बातचीत हुई, तो वो लोग उनका वो कोट जो है वो बार बार दिखाते थे वीडियो कि लोग तुम्हारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम भीतर नहीं आए हैं, तो आप क्यों हमसे बात कर रहे हो। तो जो गलती नेहरू ने की थी वो गलती आज भी हो रही है। ये बहुत दुर्भाग्य है कि नेताओं को जहां चुप रहना चाहिए और जहां बहुत सावधानी से बोलना चाहिए वो नहीं करते, अपने राजनीतिक हित के हिसाब से बोल लेते हैं। गलतियां अब तक चली आ रही हैं। लेकिन मैं सिर्फ इस बात को समझना चाहता हूं कि डोकलाम में जब 2017 में आया था चीन, तो तब तो वो लौट गया, लेकिन अब जो है यहाँ रिजिड है। तो क्या कारण है दोनों के बीच में, इसमें फर्क क्या है? पहले अगर डोकलाम का बात करें तो एक बार सभी का नॉलेज के लिए एक बार रिवाइज कर लेंगे, ओवरव्यू ले लेंगे। हाँ, डोकलाम है इंडिया में नहीं, डोकलाम है भूटान में। ये एक जगह है। आपके पास मैप है, अगर तो मैप पर भी बता सकते हैं। हाँ, मैप को पर मैं दिखा देता हूँ। अच्छा ठीक है, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है, मैं थोड़ा बाद में आपको उसको दिखाता हूँ। मैं ऐसे बता देता हूँ कि डोकलाम है भूटान में। तो आपको जो पहले मैप में दिखाया था जिसमें आपको ये दिखाया गया कि सिक्किम जो है, सिक्किम का पास, सिक्किम का ईस्ट में है भूटान। तो ईस्ट सिक्किम और भूटान एक कॉमन बॉर्डर है। सिक्किम मतलब इंडिया का हिस्सा, इंडिया है। और वहाँ पे एक चाइना भी, वहाँ पे चाइना, इंडिया और सिक्किम का एक बॉर्डर है जिसका नाम है ट्राई जंक्शन। तो उस एरिया में 2017 में बहुत ही माउंटेनस एरिया है, हाइट 15-16,000 फीट है, दुर्गम एरिया है, hardly any habitation is that side, and there are no trees because there are no oxygen in that area. So above 12,000 feet there are no trees, it's only mountains and lot of deep valleys. So in that area, this place Dukalam is part of Bhutan, but China had laid claim on part of Dukalam for many years, saying that that area is a grazing land of the Chinese shepherds. So if Bhutan has to use this area for their grazing of their cattle,
then they had to pay some fees or whatever. So that was a basic thing. But however, being Bhutan and with India and Bhutan having a different sort of agreement where we are there, we look after the protection of Bhutan. So Indian Army noticed in 2017 that China has started constructing some road in the Doklam area and very near a pass called Dokala Pass, Dokala, which is under Indian occupation. So within 2 kilometers of Dokala Pass, this road was coming in. So thereafter, Indian Army went in there. We brought in our bulldozers and we started destroying that road. So there was a confrontation with Chinese. There was हाथ सफाई जैसे हुआ था वहाँ पे, कोई फायरआर्म्स का यूज नहीं हुआ है. उसके बाद आफ्टर 1-2 महीना बाद चाइना वहाँ से विड्रॉ कर लिया. वहाँ पे भूटान का कुछ प्रॉब्लम ये है, भूटान इज अ स्मॉल कंट्री एंड दे आर अंडर थ्रेट बाय चाइना दैट सिक्किम, भूटान और तिब्बत का एक ही मदरलैंड है, वो है चाइना. अभी समझ लीजिए चाइना का एम्बिशन और चाइना के एग्रेसिव पॉलिसी कहां तक है. तो इस यहाँ पे शायद भूटान ने इंडिया को बोला था तो इसको उतना ज्यादा आगे ना बढ़ाए, तो उसके बाद इंडिया भी वहां पे विड्रॉ कर लिया था और चाइना भी वहां से विड्रॉ करके वहां पे स्टेटस को है. तो उसका पोजीशन और वो जो एरिया है वो अलग है. उसके साथ ये जो लद्दाख में जो हो रहा है इसका कोई कंपैरिजन नहीं है. कारण आपको बताया, लद्दाख इज आवर integral part of our country in India, and it is not a third country where they are under our protection. So there is no question of any compromise of China with China in this regard. ये बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी दी आपने. लेकिन अब मेरा एक छोटा सा सवाल यहाँ पर ये बनता है कि अगर हम 1962 को याद करें तो चाइना ने भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश जो है नवंबर से शुरू किया और अक्टूबर तक अक्टूबर से शुरू किया, नवंबर तक जाते जाते वो वार जो है खत्म हो गया. जहां तक चीन को आना था या जब इनको पकड़ना था वो पकड़ के उसके बाद रुक करके वो बाकी उन्होंने वो पीछे चले गए. अब मेरा सवाल ये है कि चाइना अगर फिर अक्टूबर नवंबर में इसी तरह के वारदात को अंजाम देने की कोशिश करता है तो ये जो करीब 4000 किलोमीटर का बॉर्डर है हमारा वहां, और लद्दाख एरिया में जहां ऑलरेडी हम कन्फ्रंटेशन में जा चुके हैं, भूटान के में जहां कन्फ्रंटेशन में जा चुके हैं, अरुणाचल में 62 में कन्फ्रंटेशन में जा चुके थे, तो क्या इंडियन आर्मी अब उसको फाइट करने के लिए तैयार है? पहले मैं 2-3 स्टैटिस्टिक्स क्लियर कर लेता हूं कि 1962 में चाइना अक्टूबर में नहीं आया था, वो आया था बहुत पहले. 1962 का मई जून महीना में उन लोग अक्साई चीन में आए थे. उसके बाद उन लोग आगे अक्साई चीन उन लोग तब से कैप्चर कर लिया था और वहां पे हमारा कुछ असम राइफल्स का या पुलिसमैन कुछ थे, उन लोग हत्या कर दिया था. ठीक, तो ये फैक्ट उस समय मतलब उतना आगे नहीं आया होगा उस समय. और उसके बाद उन लोग जून से लेके यहाँ पे पूरा एडवांसिंग शुरू किया, हेवी पेट्रोलिंग शुरू किया और इंडियन आर्मी का जो हमारा जो पोस्ट था उनके साथ उनका लगातार वहाँ पे छोटा मुठभेड़ होते रह गया. और ये इंडियन पोस्ट क्यों वहाँ पे था ये भी आपको बताता हूँ कि उस समय भी एक पॉलिटिशियन का इसमें अपना ही चाचा नेहरू जी ने ये कहा कि वहाँ पे एक फॉरवर्ड पॉलिसी होगा. क्या फॉरवर्ड पॉलिसी होगा? चाइना हमारा अंदर आने दो, हम वहां पे उनका पीछे फॉरवर्ड पोस्ट तैयार करेंगे, उसको मैन करेंगे, छोटा टोली वहां पे रहेगा और हम चाइना को जो उनका जो सप्लाई लाइन है वो बर्बाद करेंगे. ये था उस समय का दिमाग वाले आदमी का एटीट्यूड या डिसीजन. तो ये फॉरवर्ड पॉलिसी जो है ये चाइना को और भी मजबूर किया होगा मेरे हिसाब से. और काफी जो ज्ञानदार जो आदमी है उस समय का वो भी यही बोलता था कि ये फॉरवर्ड पॉलिसी वन ऑफ द रीजंस व्हाई चाइना अटैक्ड इंडिया. एनीवे 1962 is gone, Nehru regime is gone. This is a different India and different preparation, and we are ready to face China of any such adventurism. बॉर्डर लंबा है. चाइना तब भी 2 फ्रंट पे लड़े थे.
1962 में ईस्ट में अरुणाचल में अटैक किए थे। फर्स्ट अटैक हुआ था थेगुला बोल के एक रिजलैंड है वहां पे, और इस साइड में जो गलवान, जो डलॉग भी, ओल्दी, ये सब एरिया में। और इन लोग शांगो लेक तक आए थे, ये फिंगर, ये गलवान का ये, उसके बाद चुसुल, ये सब एरिया में उन लोग थे। और 1962 का नवंबर में विड्रॉ हो गया था। काफी घमासान लड़ाई हुआ है, हमारा काफी कैजुअलिटी हुआ है। पूरा बटालियन का कंप्लीट एक कंपनी मतलब 125 जवान, टिल द लास्ट मैन हैड डाइड विद द राइफल इन द हैंड इन द फ्रीजिंग क्लाइमेट। चाइना का भी कोई हमने छोड़ा नहीं है, उसका भी बहुत सारे कैजुअलिटी हुआ है। उसका फिगर हमसे कम होगा, लेकिन हुआ था बहुत सारे, 800, 900, 1000 तक उनका भी हुआ है। लेकिन तब और अभी में फर्क बहुत है। 1962 के बाद इंडिया का काफी मिलिट्री पॉलिसी एंड डॉक्ट्रिन्स वगैरह चेंज हो गया। मॉडर्नाइजेशन काफी ऊंचे दर्जे किया है और काफी अच्छी तरह से किया है। एंड उसका फल बाद में हमको देखा गया था 1967 में। मतलब 1967 में चाइना और एक कोई चीज ट्राई किया था नाथुला में। नाथुला कहाँ पे है? नाथुला आजकल एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है सिक्किम में, टूरिस्ट डेस्टिनेशन अभी है। और उसके साथ हमारा एज ऑफ नाउ 30-40 गज आगे चाइना का भी पोस्ट है। लेकिन 1967 में, 62 का 5 साल बाद, जब चाइना सोचा था कि हमने तो किला फतेह कर दिया है, तब उन्होंने जाके वहां पे उनका पोस्ट जो है, और उनका पोस्ट जो वहां पे प्रॉपर बॉर्डर है जो सिक्किम के साथ है, वो हम जो मानते हैं जो बॉर्डर है, शायद वो नहीं मानता है, वो उसको क्रॉस करके आगे आ गया। तो इंडियन आर्मी वहां पे जो बटालियन थे, उन लोग वहां पे बार्डवेयर लगाना शुरू किया। चाइना पहले हुमकी दिया बार्डवेयर हटाओ वगैरह वगैरह, नहीं माना। उनका कर्नल साहब जो वहां पे बटालियन के सीओ था, वो भी वहां पे कैजुअलिटी हुआ था इस तरीका का, जो पहले यहाँ पे जो शेंगोंग लेक में जो हुआ था। उन्होंने मशीन गन फायर उनको ऊपर किया है, वो प्लस उनका साथ 5-6 आदमी वहां पे ही उनका डेथ हो गया था। लेकिन बाद में उसका ऊपर आर्टिलरी फायर आया है और उनको ऊपर पूरा का पूरा असॉल्ट हुआ है। और चाइना का वहां पे काफी नुकसान हुआ था, इंडिया का भी नुकसान हुआ है। इंडिया का तकरीबन 77-80 कैजुअलिटी हुआ था, जहां पे चाइना का 350 आदमी मर गया। ये था 1962। आगे चलते हैं 1986-87 में। अभी ये ध्यान से सुनिए, चाइना अरुणाचल प्रदेश में दोबारा आ गया, और एक बटालियन नहीं, 700 आदमी लेकर नहीं, एक रेजिमेंट नहीं जिसमें 2000 आदमी होगा, 20,000 लेके आ गया धीरे धीरे अरुणाचल का वही थेगू वगैरह उस एरिया में। और उसका हमको पहले से थोड़ा खबर था। 1987 में हमारा आर्मी चीफ था जनरल सुंदर जी, तो उन्होंने उस समय इंडिया का 3 डिवीजन वहां पे एयरलिफ्ट कर दिया था। जितना भी हमारा पास रशियन हेवी एयरक्राफ्ट था, IL-76, AN-32, कंप्लीट 7 to 10 डेज के अंदर 3 डिवीजन वहां पे यह कर दिया था। उसके बाद टैंक्स भी वहां पे मूव कर दिया। और अरुणाचल प्रदेश भी माउंटेनस है, कुछ एरिया वहां पे टैंक्स डिप्लॉय हो सकते हैं, बाकी एरिया बहुत ही हेवी और डीप वैलीज और बीच बीच में नदी है, वहां पे टैंक्स यूज नहीं हो सकते हैं। लेकिन जहां पे टैंक जाएगा वहां पे गया था, आर्टिलरी डिप्लॉयमेंट हो गया। और 1986-87 में जब चाइना का फोर्स पहुंचा है, उन लोग देखा कि ये तो बात अलग ही है। So there was a negotiated settlement. China went back from this place called Samdaramchu. So the incident of Samdaramchu in Arunachal was an eye-opener for China that the 1962 is gone and past and it will not be repeated. So their 2 divisions worth of soldiers went back with their tails between their legs. That was 1987. बिल्कुल सही कहा आपने। मैं बस प्रोग्राम, हमारा टाइम पूरा हो गया है, तो इस प्रोग्राम का मैं आखिरी सवाल आपके सामने रखता हूं कि अभी तक जो खबरें आ रही हैं कि जो पैंगोंग एरिया है और जो लद्दाख का एरिया है, वहाँ 30-35 हज़ार की संख्या में चाइनीज फोर्सेस जो हैं वो मौजूद हैं।
भारत ने भी काफी डिप्लॉयमेंट किया है। और एक अच्छी बात यह है कि 62 हो या 67 हो या 87 हो, लगभग हर समय जो है उस पूरे एरिया के लिए हमारे पास जो ड्रेस चाहिए, जो किट चाहिए, वो मौजूद नहीं था। लेकिन अब तो उससे ज़्यादा डिफिकल्ट टेरेन जो सियाचिन का है, वहाँ हम रह रहे हैं और हमारे जवान वहाँ लगातार तैनात रहते हैं। तो आर्मी तैनात रहती है, तो जाहिर सी बात है कि उनको किस तरह के ठंडे वेदर में कपड़े चाहिए, वो सारी चीज़ें हैं। बोफोर्स गन जिसकी बहुत आलोचना हुई, बताते हैं कि बहुत ही लाइट गन है और बहुत आसानी से उसकी भी उसको कहीं भी बहुत दूर दराज के इलाकों में भी पोस्ट किया जा सकता है। सो माय क्वेश्चन इज कि जैसे 87 में बड़ा जमावड़ा किया था, उसी तरह का बड़ा जमावड़ा किया है, और अगर अक्टूबर नवंबर तक फिर से वो एक्शन करता है, तो किस हद तक हमारी आर्मी जो है वो जवाब दे पाएगी? रिएक्शन अगेंस्ट एक्शन, मिरर डिप्लॉयमेंट। उन लोग का 35,000 सोल्जर्स है, 2 डिवीजन, हमारा उससे ज्यादा ही अभी है। और सिर्फ इन्फेंट्री डिवीजन का बात नहीं होता है, बात होता है कि क्या क्वालिटी के इक्विपमेंट है, किस किस्म का इक्विपमेंट है। आप सिर्फ बोफर्स का बात किया है, हम और भी उसका आगे का कुछ आर्टिलरी का बात मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। 155 mm यूएस गन्स हमारा पास है, जो भी हाउइट्जर है, लाइट है, हल्का है। और हमारा पास अभी चिनूक हेलीकॉप्टर है, जो वन ऑफ द हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर ऑफ यूएस आर्मी। सो चिनूक हेलीकॉप्टर से उसका एक एक गन आराम से उसको हेवी लिफ्ट करके कहाँ पे भी डिप्लॉय हो सकता है। उसके अलावा जो हमने जो बोला था कि जो हमारा वहाँ पे जो रोड कंस्ट्रक्शन हुआ है और ब्रिजेस का बेटरमेंट किया है, उसके जरिए हमारा हेवी इक्विपमेंट जैसे टैंक्स या बीएमपीज, दैट इज कैरियर्स जो है, वो सब वहाँ पे डिप्लॉय होता है। और इंडिया का पास बाकी जो इक्विपमेंट है जो चाइना का बराबर है, कोई चीज़ में हम उससे सुपीरियर है। जैसे आपको मैं बता दूं, हमारा एयरफोर्स का पास जो अभी लेटेस्ट एयरक्राफ्ट है, आप लोगों को पता ही है सभी को कि राफेल आया है, सुखोई है। और हमारा एडवांटेज एयर पावर में ये है कि हमारा एयरक्राफ्ट अंबाला और श्रीनगर, ये सब एयरपोर्ट से जो टेक ऑफ करेगा प्लेन से। लेकिन चाइना का पास जो एयरफील्ड है वो है तिब्बत में, जिसका ऑलरेडी हाइट है 13-14,000 फीट हाइट में। उस हाइट में फुल एयरक्राफ्ट का फिटमेंट, दैट इज आर्मामेंट फिटमेंट नहीं होगा, उसको वेट कम लेना पड़ेगा, उसको आधा फ्यूल टैंक से उसको ओढ़ना पड़ेगा। एंड सुपीरियरिटी ऑफ एयरक्राफ्ट एज फॉर द वर्ल्ड नोज दैट कंपेयर टू द Ju-22 दिस टाइप का एयरक्राफ्ट जो चाइना का पास है, Indian Air Force is far superior in training and in the type of aircraft. Equipment wise also, tanks we got better quality tanks, T-90, T-72, which are basically Russian tanks, and they are heavy tanks. In that, there may be a little this thing that everywhere we can't deploy those tanks, but in places like plains, like Dipson Plain, or in certain places where plain areas there, those tanks can create havoc. Other than that, our army is a battle-hardened army. Our army had fought in Siachen, and till the last 20 years, they are still occupying it. Our फौज वहाँ पे अभी तक है, और at -50 degree temperature में सारे till whole year they are there. So winter warfare हमारे लिए उतना डिफिकल्ट नहीं है जो चाइना के लिए होगा। बट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये है, अक्टूबर के बाद जब स्नो भरा जाएगा तब इन्फेंट्री मूव करेगा, स्नो पे मूव करेगा, लेकिन ना टैंक्स मूव हो सकते हैं, ना आर्टिलरी गन्स मूव हो सकते हैं। हवा से जा सकते हैं, चिनूक एयरक्राफ्ट लिफ्ट करके उसको ले जाएगा, जहां पर डिप्लॉय कर जाएगा 200, 500, 400 किलोमीटर, लेकिन रोड से नहीं जाएगा। तो या तो चाइना जो मिशन के लिए आया है सितंबर एंड तक उसको स्टार्ट करे या जो मर्जी करे, लेकिन अगर उन लोग चाहते हैं कि लॉन्ग हॉल, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक वहां पे आइस रहते हैं, स्नो रहते हैं। तो
उसका मर्जी इंडियन आर्मी तैयार है। बिल्कुल सही कहा आपने, इंडियन आर्मी तैयार है। और उन्होंने कई बार 62 को लोग याद करते हैं पर 65 को भूल जाते हैं, जब पाकिस्तान को हमने पटकनी दी, जो फुल फ्लेजेड वार था। और उसके बाद जब बांग्लादेश का 1971 में बांग्लादेश एक पूरे का पूरे नए देश का निर्माण कर दिया और उसमें सेना की भूमिका थी। और जाहिर सी बात है कि ट्रेनिंग के मामले में, वार के मामले में, एक्सपीरियंस के मामले में भारतीय सेना निश्चित तौर पर चीन से कम नहीं है। भले ही उनके पास इक्विपमेंट, मैन पावर वगैरह वगैरह ज्यादा हो, लेकिन जो आपने बताया वो कमजोरियां तो रहेंगी ही रहेंगी। फिलहाल हमारा समय पूरा हो गया, इसलिए हम प्रोग्राम को यहीं खत्म करते हैं। हम आपसे दोबारा भी बात करेंगे और कुछ नई चीजें, नई जानकारियां लेंगे। दर्शकों, प्रोग्राम को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं, लेकिन आपसे अनुरोध है कि आप फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और जितने भी सोशल मीडिया है वहां हम मौजूद हैं, आप वहां हमसे जुड़े। एक बात और कहना चाहूंगा कि इस प्रोग्राम के आखिर में आप डिस्क्रिप्शन का एक बटन पाएंगे, उसको अगर आप दबाएंगे तो आपको satyhindi.com की सदस्यता के बारे में सूचना मिलेगी। आज जब पूरी पत्रकारिता गोदी मीडिया के नाम से जानी जा रही है या कॉर्पोरेट मीडिया के नाम से जानी जा रही है, जहां सच को सामने नहीं लाया जा रहा है, वहां सच को बिल्कुल सच की तरह सामने रखने का हमारा इरादा और वादा है आपसे। इसी के साथ आज के इस प्रोग्राम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, जय हिंद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।